are working on full capacity. Everything is okay now. I think theaters working in full capacity is a great benchmark to know how the COVID is working right now. Yeah, that's why I shared it. Right, right, right. So good, Mohit. So I believe that you had a chat with Kirtana, right, to help you understand what are we building over here in the first place. Yeah, I had a chat and I had a conversation with her. Right. And what were your She is initial thoughts regarding the idea and what is it that we are trying to do? the idea is great. Okay, okay. I believe in saying yes to the things that I think is good and Hmm, great. hmm, hmm, So I just had a conversation and I asked her hmm, that what's the business model, how can I create content there, how can I monetize the content, hmm, all, hmm. all this stuff. And she answered beautifully. Very good, very good. That's kudos to Kirtana. And so I wanted to understand, Mohit, if you have any questions or if you have thought of any questions, if you like to ask me, or if you want to rediscuss something which you want to discuss, I'm happy to invest. And that is the primary the reason, and also the next steps what we'll have regarding this particular idea. So, is there any question I can help you answer if you want to discuss the business model again, or if you have any questions over that or about the idea? I'm happy to answer those questions, Mohit. The only question I asked her Mm-hmm. that what's the possibility of earning. Hmm. So maybe she was not the right person to answer that question. Got it. So I'm asking you that what's the possibility of earning money? It sounds something selfish, but Oh, no, no, yeah, no, no, no. Okay, so that is what it is. no, no, no. So great question. So there are two folds. The answer I will answer it in two folds. One is the way you're asking. So you shouldn't be thinking that this is selfish. You're putting your time and effort in this platform, or rather, you will be putting your time and effort in this platform. That's number one. So Obviously. when we say that, you definitely have to make some living out of it. So let me take a step back, right? So how did Curative, and I will end the statement or end this conversation with why you should not feel selfish by asking this question. That is number one. And number two, what is the possibility of you making money? I want to answer both these questions. Okay. So the reason when I started thinking about the reason this idea came to me is because when I started searching for content online, and I am a very inquisitive guy. So if I want to learn more, not learn, if I want to know more about what is happening in the current world, like a Ukraine and Russia war, or what is happening in cryptocurrency, or what is happening in any particular domain, I would go to Google and I would search for that content, and it would show me links and links of content to go to for me to go through. And then Mhm. over the period of time, I realized that I got a great 3 minute article, but it took me 20 minutes or 15 minutes to search for the article. I saw a great 2 hour movie, but it took me 45 minutes to discover that movie. I listened to a great 20-minute podcast, but it took me 12 Mhm. minutes to search for that podcast. Why is it so? Why is it searching for content so difficult? Yeah, that's a very great problem, and there are very few people who curate content for you. Right, 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 right. And Absolutely. I'm also, yeah, like Tim Ferriss. Do you know Tim Ferriss? Yeah, yeah, obviously I know Tim He's a Ferriss. famous Yeah, podcaster. yeah, yeah. He has a newsletter. He Hmm. has an email list which Yep. where he shares his content, Hmm, hmm, and so curated list. hmm, So, hmm, but I also had an idea. I also had this idea hmm, that what if we can curate hmm, contents hmm. based on everything. Right. Means people want to search business, Hmm. then they can just watch best content on business out there. Right. So yeah, I had Right. an idea. Perfect. So But Mohit, you completely understand where I'm coming from, right? So when I yeah. was thinking about this problem, I realized that, like I said, I was spending X amount of time, but I'm spending almost X amount of time searching for content also. And the reason for that is because as humans, our attention is limited, whereas there is infinite content, and there is content fatigue and attention fatigue happening right now, where algorithms are built such a manner that every algorithm is bidding for attention, and that's why it's very difficult to scan through the entire content and then understand which is the right content for you. So when I kept thinking of this problem, I thought instead of searching for content, let me search for people who are recommending this content. So what Hmm. happened is I found like 10 curators who are pertaining to 10 of my interests. Like one curator on Reddit for murder mystery movies, one Reddit on Quora for market news, capital market news or stock market news, someone on Twitter for cryptocurrency, someone on Slack for mental health.
Basically, everything that I consumed was spread across 10 different social media platforms. But still, there were a lot of problems. Number one, none of the social media platforms are known for curation. Because of which, when the curator curates something on that particular platform, it falls on deaf ears. And I'm sure you must also be facing this problem on Instagram, right? Instagram, you're recommending books. But not everyone is coming to Instagram to get book recommendations, right? So now, what Right, happens right. is everyone to discover you as a book recommender or a curator of books, it becomes a two-step process. Number one, first they have to decide, acha, let me go to Instagram and then let me search for a book. So when it becomes a two-step process, there is a lot of content being bypassed into the wedges or the creeks where it is going into deaf ears and blind spots where actual content readers are not able to get that. So what is पर Curate's do? Sorry? पर ऐसा इंस्टाग्राम पे होता नहीं है, मतलब कि जैसे आपने कोई बुक का नाम सर्च किया, हाँ एटॉमिक हैबिट्स, तो हाँ वो हमारा पेज नहीं दिखाएगा, या किसी ने मेरी पोस्ट सर्च की तो वो मेरी पोस्ट नहीं दिखाएगा। ये इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब एग्जैक्टली वहां पे क्रिएटर का कंटेंट सर्च नहीं कर सकते आप। Exactly. That is number one. And number two also, that is a perfectly valid point. But दूसरा प्रॉब्लम जो मैं सोच रहा हूँ क्या है कि मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर बुक्स का रिकमेंडेशन चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम जाना पड़ेगा। कोई इंस्टाग्राम क्यों सोचेगा, मतलब कोई लिंक्डइन भी सोचेगा, कोई गुड रीड्स भी सोचेगा, कोई गूगल भी सोचेगा। तो कोई पहले पहले स्टेप में इंस्टाग्राम नहीं आएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So what you said is also a valid point, but where I'm coming from is the intention of the subscriber. When they want good book recommendations, they don't even know that should I go to Instagram. So to discover you as a book recommender, first they have to come to Instagram and search for book recommendations or book or even the word book. जब book read करेंगे तो आप तो आ जाएंगे क्योंकि आपका नाम ही book gains है, तो आप discover हो जाओगे। तो राइट। what are we doing? What is Curate is doing is हम वो पहला सवाल bypass कर रहे हैं। मतलब अगर आपको recommendation चाहिए तो आप Curate जाओ, आप Instagram, Reddit, Facebook, Quora सोचो ही मत, क्योंकि पूरा platform is built on recommendations. So when the whole platform is built on recommendations, it becomes very easy to discover the curator. क्योंकि now let's compare Instagram and Curates. If I am a subscriber and I am looking for good book recommendations, first I will decide, अच्छा ठीक है मैं Instagram जाता हूँ, मैं Instagram जाऊंगा, मैं book search करूंगा, फिर मैं आपको discover करूंगा। Whereas in Curates पूरा प्लेटफॉर्म ही बिल्ड ऑन रिकमेंडेशंस है। तो मैं क्यूरेटिस में जाऊंगा, बोलूंगा मुझे बुक रिकमेंडेशन चाहिए, इमीडिएटली आपको डिस्कवर करेगा और आपका रिकमेंडेशन उनको मिल जाएगा। सो वी आर सॉल्विंग दैट एंटायर वन, एक पूरा स्टेप ही हम बाईपास कर रहे हैं। सो दैट मीन्स योर क्यूरेशन विल रीच लार्जर ऑडियंस and will be able to cater to more audience and build a larger subscriber base over and above what Instagram can provide right now. That is first statement. Now let me come to the monetization bit of it. See, ये प्लेटफॉर्म में ना पैसा तो बनना है। एंड मैंने आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू मेक मनी, आई एम सेइंग द पॉसिबिलिटी इज 100%। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अभी द क्रिएटर इकोनॉमी इज जस्ट पिकिंग अप। क्रिएटर इकोनॉमी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे थोड़े $1 billion वर्थ ऑफ इकोनॉमी है, जिसमें 50 मिलियन क्रिएटर्स है, जिसमें 2% क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट when if their monthly expense is X, they're able to make X only by recommending. Only 2% of the creator economy is able to make a living out of it. We are going to change that. With the creator economy growing, we believe that within a creator economy, a curator economy is also shaping up, where people are recommending what they're reading, what they're watching, and what they're listening. Over the period of time, right? Over the period of time, people, the subscribers mainly, would value time more. When I say over the period of time, मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा 4-5 साल में, मैं बोल रहा अगले 6 महीने में। अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि अभी वी फास्ट क्यों चल रहा है, स्विगी क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को रेस्टोरेंट नहीं जाना है। लोग चाहते हैं कि भाई घर पे मेरे को खाना खाना है, मेरा खाना घर पे आ जाए। सो पीपल आर पेइंग फॉर दैट सर्विस। कम अगेन? ईज, एग्जैक्टली, ईज ऑफ इट एंड ऑल्सो मतलब मेरे पास पैसा है, आई एम रेडी टू पे फॉर दैट डिलीवरी चार्ज फॉर द फूड टू कम टू मी। सो नाउ पीपल आर स्टार्टेड टू वैल्यू टाइम। इट कॉस्ट मी मोर टू टेक माई कार आउट, पे फॉर द पेट्रोल, गो एंड पार्क द कार, खाना खाओ, वापस गाड़ी लेके घर पे हो। वो पूरा टाइम जो है ना, उसमें मेरे को ज्यादा टाइम जाता है। आई रादर ऑर्डर फूड। सो व्हेन पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग टाइम ना, Curateous is going to make money and you're going to make money in the return. Why? इस प्लेटफॉर्म से लोगों का बहुत टाइम बचने वाला है। बहुत टाइम बचने वाला है। मतलब किसी को अगर 2 घंटे का मूवी देखना है, वो जल्दी जाके देख ला कि भाई मेरे क्यूरेटर ने क्या रिकमेंड किया, मैं मूवी देख लूं, क्या बुक रिकमेंड किया, बुक रीड कर लूं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि पहले शॉट में सब रिकमेंडेशन एकदम हिट जाएगा। इट इज अ डिस्कवरी फेज। सब्सक्राइबर्स भी फीडबैक देंगे, सब्सक्राइबर्स भी बोलेंगे कि हाँ मुझे बुक पसंद आया, दिस इज द राइट क्यूरेटर फॉर मी एंड आई वांट टू पे ओनली फॉर दैट क्यूरेटर। सो इट्स अ डिस्कवरी फेज टू बोथ। मतलब होता है ना कि टेंडर मैच जैसे होता है। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे का पहले टेंडर मैच करो, देखते कि कंजम्पशन हैबिट सेम है कि नहीं, रिकमेंडेशन हैबिट सेम है कि नहीं। तो वो सबके बाद एक मालूम पड़ेगा कि ये मेरा क्यूरेटर है
तो मैं उसके सब्सक्रिप्शन के लिए मैं पे करूँ, आई विल पे ओनली 50 रुपीज पर मंथ ओनली टू गेट क्यूरेटेड कंटेंट। और एक बंदा अगर 50 रुपए कर रहा है, वैसे 20-30 हजार लोग होंगे, तो आपको महीने का तो छोड़ो, सालाना पैसा बहुत बनने वाला है। So that is our aim. We want to make money out of curation. So to answer your first question, yes, there is definitely way to make money out of it, 100% of it. Now let me tell you the business models that we have. I told you a couple of them. One is you can pay as you go. मतलब मेरे को एक बुक रिकमेंडेशन मिल गया मोहित से, मेरे को और एक चाहिए, वो और एक के लिए मैं थोड़ा सा पैसा दूंगा. That is one way. That is pay as you go. Second is a subscription model at a platform level. मतलब मैंने पूरे प्लेटफॉर्म के लिए रीड, वॉच और लिसन का मैंने पूरा एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, तो जो भी क्यूरेशन आएगा मेरे को फ्री में आएगा, क्योंकि मैंने पूरे महीने का पे कर दिया. दैट इज सेकंड वे. दैट इज मंथली प्लान. दैट्स अ मंथली प्लान और अ ईयरली प्लान. मंथली, क्वार्टरली और ईयरली. हाँ, ईयरली प्लान. सेकंड है कि किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा क्यूरेटर मोहित ही है, जो मोहित बुक रेकमेंड करेगा मेरे को बहुत पसंद आता है, तो रादर देन पेइंग फॉर द एंटायर प्लेटफॉर्म, मैं रादर सिर्फ मोहित को पे करूं. तो मोहित के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, जिसका मैक्सिमम पैसा आपके पास जाएगा, थोड़ा प्लेटफॉर्म में जाएगा. तो वो दो सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा. तीसरा नहीं, चौथा, बिकॉज मैंने 3 बोल दिया, चौथा होगा ऑथर्स के साथ टाई अप. मतलब एक ऑथर आके बोलेगा कि भाई मोहित के पास 100,000 और 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और मोहित, आई थिंक यू रेकमेंडेड नॉन फिक्शन, इफ आई एम करेक्ट. नॉन फिक्शन एंड फिक्शन भी मैं करता हूँ, अभी स्टार्ट किया है. बढ़िया. तो समझो कि आपके 1 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं फॉर नॉन फिक्शन बुक्स, और एक नया ऑथर आया जो नॉन फिक्शन बुक लॉन्च करना चाहता है, वो आपके पास आके बोलेगा कि भाई मेरे लिए बुक का रेकमेंडेशन दो, अगर आपको पसंद आया, जितने बुक्स बिकते हैं उसका मैं पैसा आपको दूंगा. दैट इज द फोर्थ वे. एंड द फिफ्थ एंड द लॉन्गर टर्म, which is the go to place that we want to go, is that समझो 3 साल में हमारे पास 4-5 हजार बुक रेकमेंडर्स हैं. हाँ, मैं जाऊंगा गुड रीड्स के पास. I will go to Goodreads and I will tell Goodreads that I have 5,000 book recommenders and their book recommendations I will feature on Goodreads. तो जैसे कोई सब्सक्राइबर Goodreads जाएगा, देखेगा कि मोहित ने ये बुक रेकमेंड किया, अभी मतलब हम एक ऑथर से काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली Goodreads से काम करेंगे, क्योंकि Goodreads के पास लाखों ऑथर्स हैं. तो Goodreads को बोलेंगे कि हमारे क्यूरेटर्स विल एक्ट एज इन्फ्लुएंसर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म. तो कोई Goodreads जाएगा, उसमें देखेगा अच्छा क्यूरेटिव्स है, क्यूरेटिव्स के अंदर मोहित पांचाल ने ये रेकमेंड किया है, इसने ये रेकमेंड किया, इसने ये रेकमेंड किया, मेरे को बुक रीड करना है, मैं वो किंडल में बाय करूं या उसका एक पेपर बैक में ऑर्डर करूं. तो जैसे वो ऑर्डर करेगा, उसका थोड़ा प्रोसीड्स क्यूरेटिव्स को जाएगा और क्यूरेटिव्स का थोड़ा प्रोसीड्स आपको जाएगा. तो वी आर चेंजिंग द गेम हाउ पीपल आर सैटिस्फाइड विद कंटेंट, एंड दैट इज अ लॉन्गर टर्म प्लान. So, I mean, your question was twofold. One is, what are the business models and what is the possibility to make money? I hope I've answered both those questions. Yeah, you answered very well and मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है आपका जो प्लान है. Perfect. And not just a plan, but the idea you have of Curatius. So, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने शायद कहीं YouTube पे वीडियो देखा था, शायद अंकुर वारिको का. तो वो भी यही बात कह रहे थे कि इंटरनेट में बस यही दिक्कत है कि सिग्नल बहुत कम है और नॉइज बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली. क्योंकि काफी ज्यादा स्पैम अकाउंट्स भी हैं, काफी ऐसे चैनल्स भी हैं जो आपको मैनिपुलेशन परोसते हैं. राइट. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है. और इससे टाइम भी बचेगा. और जैसे कि इंस्टाग्राम पे फीड पे आपको वो चीजें, जैसे कि सेलिब्रिटीज की फोटो मेरे सामने आती है, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आती है मेरे सामने. बिल्कुल. आपने एक सही चीज बोला, मेरे को एक पॉइंट बोलना है उसमें. आपने बहुत ही सही चीज बोला. आई वांट टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर. अभी क्या हो रहा है कि ये जो सेलिब्रिटीज है, जो मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिक रहा है इंस्टाग्राम में. राइट. कल अगर इंस्टाग्राम खत्म हो गया ना, तो ये सब इन्फ्लुएंसर्स का पूरा इनकम खत्म हो जाएगा. Whereas you, मोहित पांचाल, आपके पास जो है वो आपका इंटरनल आईपी है. इंटरनल मतलब ये जो बुक्स आपने रीड किया वो हमेशा आपके पास रहेगा. कल आप कहीं भी हो, कोई भी दुनिया के कोने में हो, वो आईपी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमेशा आपके पास है. Whereas ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके समझो अगर क्लोथ्स के स्पॉन्सर खत्म हो गए, उनके समझो खाने का स्पॉन्सर खत्म हो गया, उनका ट्रैवल का स्पॉन्सर खत्म हो गया, उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, वो लोग पैसा नहीं बना पाएंगे. Whereas you have such a great asset which is inbred, which is internal to you, not external to you, and that is a much bigger asset than having what you're eating, what you're traveling or what you're wearing. It's much bigger than that. So I just want to draw that point when you said celebrities आते हैं मेरे Instagram, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है. I come from the same thought. मैं चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल लोग मुझे बोले कि भाई क्या देखना है, कैसे पढ़ना है, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए.
That is where I'm coming from, and we are building और exactly for that. एक प्रॉब्लम और भी है इंस्टाग्राम पे, वो है कि इंस्टाग्राम इज ए स्टेटस ड्रिवन प्लेटफॉर्म। Yes, तो वहां absolutely. पे जो यूजर्स हैं वो ज्यादातर वो रीडर्स नहीं है, Hmm. वो सिर्फ ऐसे ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ मतलब रिकमेंडेशन देख ली, सेव कर ली, और उन्हें मतलब नहीं है, पढ़नी नहीं है कोई बुक, बस सेव करनी है, स्टोरी पे लगानी है, दूसरों को दिखाना है कि देखो मैं भी Hmm. पढ़ता हूँ। वो Right. पढ़ते हैं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आपका प्लेटफॉर्म है क्यूरेटियस, Hmm. Hmm. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जेन्युइन रीडर्स आएंगे, Yes. 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 Absolutely. क्योंकि Absolutely. यहाँ पे वही लोग आएंगे जो रीड करते हैं, Right. Absolutely. नॉट Absolutely. नॉट स्टेटस ड्रिवन पीपल और जस्ट शोइंग ऑफ पीपल। Yeah. ऐसे नहीं कि मतलब जेन्युइन रीडर्स आएंगे, तो वो एक अच्छा फैन बेस तैयार होगा यहाँ पे, Hmm. मुझे ऐसा लग रहा है। Hmm. True. True. इंस्टाग्राम पे वही दिक्कत है कि मतलब मेरे वहां पे हैं तो 254 Hmm. के फॉलोअर्स, Hmm. बट मुझे पता नहीं उसमें कितने रीडर्स जेन्युइन है, कितने स्पैम है, Exactly. कितने बॉट्स हैं, क्या है। हाँ. सो दैट्स द प्रॉब्लम है। I agree. I agree. I agree. तो मेरा एक सवाल था इस पे, आप दूसरे ऑथर्स को लॉन्च करते हो क्या, उनके बुक्स के बारे में बोलते हो क्या, जो आपको पे करते रहेंगे ना, एक नॉमिनल अमाउंट या कुछ आपको पे करते रहेंगे ना उनके बुक्स के बारे में बात करने के लिए? या राइट, तो वे पे करते हैं। बराबर। तो मुझे बताओ कि ऐसे कितने ऑथर्स आपको महीने में चाहिए टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ जस्ट बुक रिकमेंडेशन? आई जस्ट डोंट टेल मी द अमाउंट दैट यू वांट। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई बंदा एक्स पे कर रहा है और आपका खर्चा वाई है, तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसे कितने आपको ऑथर्स चाहिए कि आपका मंथली खर्चा निकल जाएगा? मैं ये डेटा देख रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऑथर्स को मैं लेके आ सकता हूँ इन क्यूरेटिव, सो दैट एवरी बुक ऑथर इन माय प्लेटफॉर्म कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। So what would be that number, if you can help me understand? मैं वापस बोलूं सवाल? नहीं आई हैव अंडरस्टूड द, हाँ हाँ एक्चुअली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपने माइंड में। अच्छा ठीक है, नहीं मतलब मोटा मोटी फिगर दे दो, मतलब 6 ऑथर, 7 ऑथर, 20 ऑथर, जितना भी, मेरे को वो समझना था सर। मैक्सिमम 5 ऑथर्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो यही रेंज में मेरे को आंसर्स मिला है। मेरे को 5, 7, 9 और 8, मैंने अभी तक 4 बुक ऑथर से, बुक रिकमेंडर से ये सवाल पूछा है, उन्होंने मेरे को ये रेंज दिया है। मतलब मैं श्योर हूँ कि 5 इतने ऑथर्स तो मतलब मेरे को 6 महीने में आ ही जाएंगे, जो आपसे टाइप करना चाहते हैं और आपका बुक लॉन्च करने के लिए आपको बोलेंगे कि भाई ये बुक रेकमेंड करो। तो मैं वो फिगर समझना चाहता था कि व्हाट इज दैट नंबर। बट दिस इंटरेस्टिंग मोहित। अच्छा मोहित, आई वांट टू नो दैट इज देयर एनीथिंग एल्स? अच्छा, मैं नेक्स्ट ईयर बात कर लेता हूँ अभी। सो करंटली हम क्या कर रहे हैं कि ओके, दिस विल बी अ लॉन्गेस्ट आंसर। मैं जब लास्ट ईयर स्टार्टअप किया था फेब में, आई वांटेड टू फर्स्ट टेस्ट द आइडिया बिफोर वी कैन लॉन्च द ऐप। तो आइडिया टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़े बहुत क्यूरेटर्स को बुलाया, उनका व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में लोगों को बुलाया। जैसे कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी जो पहला बंदा आया था वो था सनी बम्बानी, एंड ही रेकमेंड्स थ्रिलर मूवीज। तो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें थ्रिलर हाइफन सनी है, तो सनी को जो भी थ्रिलर मूवीज पसंद है वो इसमें रेकमेंड करता है। वैसे 10 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अलग अलग चीजों का, मूवीज का, आर्टिकल्स का, पॉडकास्ट का, सॉन्ग्स का, सबका बनाया। पहले 500 सब्सक्राइबर्स आए, फिर 500 सब्सक्राइबर्स में 10 क्यूरेटर्स मिले, फिर 10 क्यूरेटर्स में से 500 और सब्सक्राइबर्स मिले। ऐसे करते करते अभी हमारे पास कुछ 15,000 सब्सक्राइबर्स और 80 के आसपास क्यूरेटर्स है। एंड द क्यूरेटर्स हैव अ वेरी स्मॉल ऐप विच दे आर यूजिंग। सब्सक्राइबर्स अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ही है, बट एज वी स्पीक वी आर बिल्डिंग द सब्सक्राइबर ऐप which should be live sometime this month. End of this month is when we are thinking of going live with the app. तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं It आपको, will be an iOS app or an Android app or both? it will be both. Initially it will be for a curator, for you we have both the apps, Android and iOS. For the subscribers will starting में हमारा एक Android ऐप ही होगा, क्योंकि Android में हमको टेस्ट करना है, बिल्ड करना है, क्योंकि इंडिया में 87% लोग, 87 भी नहीं, 97% लोग के पास एंड्रॉइड है, 3% लोग के पास iOS है। तो iOS के लिए इतना हमको पैसा डालना नहीं है, बिकॉज वी आर अ वेरी लीन कंपनी एंड वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप। तो पहले सब्सक्राइबर्स का एंड्रॉइड ही होगा, फॉर द क्यूरेटर्स दे विल हैव iOS एंड एंड्रॉइड बोथ। तो आपके पास iOS हो, एंड्रॉइड हो, आप तो यूज कर सकते हो बिकॉज यूर अ क्यूरेटर। तो वो ऐप जब लॉन्च, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऑनबोर्ड करूँ, फिर आपका एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाऊं, फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी को मैं ऐप में शिफ्ट करूँ। व्हाट आई वुड रादर सजेस्ट इज दैट क्लोजर टू द ऐप ना, मैं आपको रिच करूंगा, मैं बोलूंगा मोहित ऐप लॉन्च हो रहा है, मैं आपको वॉक थ्रू दिखाना है, आपको दिखाना है हम क्या क्या फीचर्स बिल्ड कर रहे हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन इफ यू थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट यस इट इज वर्थ माई टाइम एंड I want to be an early adopter, I want to build a subscriber base so that I can make money out of it, I am happy to onboard you, because आपके पास already 254k followers है Instagram में। that is a very good indication and a benchmark कि आप तो कुछ सही कर रहे हो, right? तो मेरे को वो तो सवाल पूछना नहीं है कि आपका क्यूरेशन कैसा है, लोग रीड करे कि नहीं, वो सब हमको मालूम पड़ जाएगा।
but the fact that you have such a great follower, that means you are a curator, and I want to invite you to become the early adopter of Curatius sometime by the end of May. तो आपको वो चलेगा, मैं एंड ऑफ में आपको रीच आउट करके बोलो कि अच्छा मोहित हम बात कर सकते हैं फॉर द ऐप लॉन्च, विल दैट बी ओके? या इट विल बी ओके, ओके ओके, विल बी ओके। परफेक्ट। तो आप मुझे बताइए, आपका और कुछ सवाल हो, मैं और कुछ आपको बोल सकता हूँ, कोई आपको, अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको पिंग करता हूँ इसके बाद, और उस मैं आपको पिंग करूँगा व्हाट्सएप पे। आपका जो भी सवाल हो इस पे, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये समझना है या ये मैंने पूछना चाहिए तुमको, मुझे फील फ्री टू पिंग मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन। I mean, we can get into another call and discuss whatever questions you have. Okay, 70 70 37 37 12 12 56 56 64। 64। एक सेकेंड ना, वो आपका That's नंबर my ऑलरेडी WhatsApp सेव्ड number. है मेरे पास, सॉरी। आई थिंक मैंने आपको पिंग किया था क्या? हाँ मैंने आपको पिंग किया था, या हाँ हाँ आपने राइट मैसेज राइट, किया हुआ है मुझे वैसे। हाँ राइट है, मेरे पास आपका नंबर सेव्ड है, मैंने पिंग भी किया था, मैंने आपको वापस पिंग किया, तो आप नंबर सेव कर सकते हैं। और आपके पास जो भी सवाल होगा, आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई एम हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन एंड आई विल कीप यू पोस्टेड कि कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे कम्युनिटीज बिल्ड हो रहा है, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। Where do you live, Jatin? आई लिव इन बॉम्बे। You live in Bombay. या 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 मतलब ऑफिस वगैरह सेट कर लिया आपने, मतलब नहीं, तो अभी तो मतलब हमने, अभी तो फिलहाल सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही है हम लोग का, तो बहुत ही, हम लोग अच्छा। एक 10 मेंबर टीम है, जिसमें से 4-5 तो बिजनेस डेवलपर्स है, बाकी 6 तो टेक टीम है। हम लोग का एक आउटसोर्स्ड सोशल मीडिया एजेंसी है और मैं हूँ, तो ऐसे कुल मिला के 10 लोग ही है, और ये सब लोग स्प्रेड आउट है। कीर्तना आई थिंक कहीं साउथ में, चेन्नई में काम करती है, उसके बाद और एक 2-3 बिजनेस डेवलपर्स, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है, एक इंदौर में है। टेक टीम में 6 लोग में से 3 लोग तो केरला में बैठते हैं, एक जन राजस्थान में है, एक जन इंदौर में है, तो सब जगह स्प्रेड आउट है। हम लोग रजिस्टर्ड बॉम्बे में है, वी आर रजिस्टर्ड कंपनी, वी हैव आल्सो रेज मनी, तो हम लोग ने ये साल का पैसा भी रेज किया हुआ है, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो अभी तो हमारे पास कुछ ऑफिस है नहीं, बिकॉज सब लोग तो घर से ही काम कर रहे हैं। कभी अगर आगे जाके ऑफिस बिल्ड करना होगा तो या फिर वो बॉम्बे होगा या बैंगलोर होगा, ये दोनों सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा टेक टीम तो अभी फिलहाल केरला से बैंगलोर आने को तैयार हो सकते हैं, बॉम्बे थोड़ा दूर हो सकता है, तो वो सोचेंगे हम कि कहाँ पे कैसे बिल्ड करना है। Are there any other competition of yours? मतलब uh, or you are a single player game, so single इंडिया game में player? इंडिया में नो वन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्यूरेशन विद ह्यूमन क्यूरेटर्स, एवरीवन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद एल्गोरिदम। मतलब जैसे अगर आप वैसा पूछो तो गूगल मेरा कॉम्पिटिटर है, नेटफ्लिक्स मेरा कॉम्पिटिटर है, गुडरीड्स मेरा कॉम्पिटिटर है, यूट्यूब मेरा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो सब एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। बट आई डोंट कंसिडर देम एज कॉम्पिटिटर्स, आई कंसिडर देम एज पार्टनर्स, बिकॉज जो अगर अगर समझो हमारे पास 3 साल में 400 क्यूरेटर्स है जो ग्रेट यूट्यूब वीडियोस रेकमेंड कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूब के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आपके एल्गोरिथम के साथ, हमारे ह्यूमन क्यूरेशन के साथ आपका प्लेटफॉर्म और बिल्ड होगा। तो ये जो लोग हैं, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, गुड रीड्स, ये सब मैं अपने हमारा पार्टनर्स मानूंगा, फ्यूचर पार्टनर्स मानूंगा, दैट इज वेयर पुट इट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। देयर इज वन कंपनी इन जर्मनी एंड वन कंपनी इन यूएस जो ये कर रहा है, बट दे आर नॉट सॉल्विंग फॉर द एंटायर यूज केस। जर्मनी वाला सिर्फ आर्टिकल्स कर रहा है और यूएस वाला सिर्फ मूवीज कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तीनों चीज नहीं कर रहा है, मतलब रीडिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग तीनों नहीं कर रहा है। सो मतलब अभी मैं सोचूंगा तो थोड़े तो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, थोड़े लोग अभी बिल्डअप कर रहे हैं इसमें, बट वी आर ऑलरेडी 15 मंथ्स इनटू दिस सिस्टम, तो हमारे पास काफी हेडवे है, हमारे पास काफी यूजर्स भी है। बट या दैट्स द वे आई वुड आंसर योर क्वेश्चन। जर्मनी में आपने बताया कि कर रहे हैं वो, लेकिन आपने ये ऐसा ही किया कि पहले से ही आपने मतलब स्केल कर दिया इस चीज को, कि कैटेगरी को आपने स्केल कर दिया, क्योंकि एक बार जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि जर्मनी में वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो भी फिर अलग अलग कैटेगरी में स्केल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल करेगा, उन्हें भी लगेगा कि हम अलग अलग कैटेगरीज को भी ज्वाइन कर लेते बिल्कुल हैं। करेगा, बिल्कुल एंड ये करेगा। आपने शुरुआत से ही मतलब इंडिया में करना शुरू कर दिया, दैट्स हाँ वेरी ग्रेट थिंग। हाँ एंड या आई थिंक यू हैव गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज आल्सो। या होपफुली, बट अगर कल रिलायंस आ गया तो हम बोल नहीं सकते, वो तो अपना पूरा पूरा बिस्तर लेके आएगा, तो हम बोल नहीं सकते कि हाउ विल दैट बी। बट लेट्स सी हाउ इट इज। चलो मोहित, या मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई हैव टू गेट इनटू अनदर कॉल एट 5:30। यू हैव माय नंबर,
And what I'll do is very close to the app launch, I will reach out to you and we can have a discussion. And then I will want to give you a walkthrough so that I can onboard you in the app as well. तो वो हमारा next step करे चलेगा? Yeah, definitely. Perfect. चलो. It was pleasure talking to you, Jatin, and I'm very excited to work with you and your team. Same here, Mohit. Same here. Glad to have you on board and glad to take you through the onboarding process also. But yeah, onwards and upwards. Yeah, we are looking Thanks. forward to Have it. a great future with this. Thank you, Mohit. You too. Chalo, take care. Bye. Bye.